हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. So I welcome you all to your channel Physics Made Easy by DCP. So myself Rajan Pathak. In class 11th we were discussing about the chapter unit and measurement. So we will continue the same chapter. Today what we are going to discuss, very important topic we have taken today. Today we will discuss about the fundamental. We are going to start discussion about every fundamental units. How many fundamental units were there? 7 fundamental units were there. Earlier in previous video we have discussed that there are 7 fundamental units. How many fundamental units? 7. These are standard units, not derived by any other physical quantity of other units. These are the basic which are acceptable by the Organization of General Conference of Weights and Measurement, which select which units will be standard, which select in which physical quantity you will measure in what will be its unit. So today we are going to discuss about this all fundamental. So first of all we are discussing our first fundamental unit quantity, that is mass. The first physical quantity is fundamental physical quantity is mass, and fundamental unit is kilogram. Unit of this mass is kilogram. So first fundamental unit is kilogram and first fundamental physical quantity is mass. So now what is mass? See, suppose आप मान लीजिए भाई आप आलू लेने गए आप, तो मान लो आपने कहा भाई 1 kg जो आलू है उस पर कितने आलू चढ़ेंगे. मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू चढ़े. कितने चढ़े? 10. तो 2 kg में कितने चढ़ेंगे? अमाउंट में कंफर्म नहीं कह सकते, बट मोर देन दिस नंबर, इससे ज्यादा होंगे. और 3 kg में और ज्यादा होंगे, 4 kg में और ज्यादा. दैट मीन्स मास इज व्हाट? मास रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मैटर in that body. Mass represent quantity of matter in that body. Means mass ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी है उस मैटर की. जैसे चीनी, 1 kg चीनी में 1 kg चीनी kg ये बताती है कि चीनी के कितने दाने हैं. 1 kg एप्पल में ये 1 kg एप्पल ये बताता है कि उसमें एप्पल के कितने दाने हैं. हाउ मच अमाउंट मैटर, कितना मैटर उसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड मास. एंड इट नेवर जीरो. कभी जीरो नहीं हो सकता. भाई आप 1 kg आलू लेने गए तो जीरो वेट पे ले आएंगे? नो, आपको मेजर करना पड़ेगा. सो इट नेवर बी जीरो. तो मास नेवर बी जीरो. मास कभी जीरो नहीं होता. इफ यू विल से दैट द मास ऑफ दिस बॉडी, दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो, दैट मीन दैट इज नॉट मैटर. वो मैटर नहीं है, बिकॉज मैटर हैव ए मास. मैटर का क्या होता है? मास. एंड वी डिस्कस इन फिजिक्स अबाउट मैटर ओनली. सो मास नेवर बी जीरो. नाउ टाइप ऑफ मास. हाउ मेनी टाइप ऑफ मास आर देयर? देयर आर 2 टाइप ऑफ मासेस. 2 तरह के मास होते हैं. क्या होते हैं? उनके नाम क्या है? नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड इनर्शियल मास. व्हाट इज नंबर फर्स्ट? इनर्शियल मास. एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास. What is number second? Number second is gravitational mass. There are 2 type of masses of a body. किसी बॉडी के 2 masses होते हैं, gravitational mass and inertial mass. Both are equal. What is the meaning? Inertial mass will be equal to gravitational mass. Only their conditions where they measure. दोनों ही सेम होते हैं. मतलब अगर ग्रेविटेशनल मास 10 kg है तो इनर्शियल मास भी कितना होगा उस बॉडी का? 10 kg होगा. But what is the basic difference? Their condition where initial mass is considered, their representation which they are represent, according to that they are different. Otherwise their values are same. Now number first, what is inertial mass? Inertial mass. What is the meaning? Number first you have to discuss about inertia word. What is inertia? Inertia is called inability of a body to change its position. Proudness. Inability of a body to change its position means मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करूंगा. Suppose a body is in rest, it will, how easily it will change its position, it will depend on its inertial mass. वो उसका किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट्स इनिशियल मास. दैट मीन्स व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन और व्हेन बॉडी मूव और कम टू रेस्ट,
everything will depend on its inertial mass. वो किस पे डिपेंड करता है? उसके inertial mass. So what inertial mass represent inertial property of body. Inertial property of body. It will represent the inertial property of body. Inertial property means the inability of a body to change its position. मतलब वो कितनी जल्दी चेंज करेगा या नहीं करेगा, इस एबिलिटी को जो मास दिखाएगा कि कोई कितना जल्दी चेंज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इनर्शियल मास. सो इनर्शियल मास रिप्रेजेंट इट्स इनर्शियल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव ए साइकिल, वन स्कूटी, कार एंड ट्रक, यस ऑन, बाय अप्लाइंग द फोर्स, अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, मैं एक गाड़ी है, क्या क्या चीज है हमारे पास, एक साइकिल है, एक स्कूटी है, कार है और साथ में क्या है, ट्रक है. अगर मैं अप्लाई करूं फोर्स तो किसे इजीली डिस्प्लेस कर सकता हूं? साइकिल को, मेरी स्कूटी को भी कर सकता हूं, पर ये दो मेरे से इजीली डिस्प्लेस नहीं होंगे. दैट मींस वी कैन से देयर इनर्शियल मास इज, inertial mass of cycle and scooty is less, but the highest inertial mass is of truck. So inability of a body to change its position. अगर जो जितना ज्यादा प्राउडनेस दिखाएगी अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए, that means its inertial mass is more. So inertial mass represent its inertial property. किसे रिप्रेजेंट करता है? Its inertial property. Number second, that is gravitational mass. What is gravitational mass? Now what is gravitational mass? See, everybody knows that if there is a body, every body is attracted by earth towards its center. Yes or no? Every body is attracted by earth towards its center. कोई भी चीज छोड़ दीजिए आप, बॉडी कहाँ की ओर अट्रैक्ट होती है? टुवर्ड्स its center. So gravitational पुल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेविटेशनल पुल. मतलब अर्थ का फोर्स, खींचाव, अट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल पुल रिप्रेजेंट बाय ग्रेविटेशनल मास. सो ग्रेविटेशनल मास रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल पुल. if earth will attract a body by high force, by high attraction, that means its gravitational mass is more. So gravitational mass represent earth gravitational pull and inertial mass represent its inertia. That means if a body is in y-axis like this, up and down, that time its mass is called gravitational. When a body moving in horizontal, that time its mass is called inertial mass. Is it clear? Up and down में earth की gravity काम करेगा, by which earth going to attract it, that time its mass is called gravitational. When a body move, when we are going to try to move the body, that time its mass is called inertial mass. Both are same. One is going to show its inertia, second will show its gravity pull. Yes, both masses are same, but these are of two type. Mass never be zero. Mass कभी भी zero नहीं हो सकता, and mass never change. Mass कभी बदलता नहीं है. Mass never change. Mass कभी भी नहीं बदलता. Meaning क्या होगा? If we will see that suppose on earth there is a body, mass of body is 100 kg, for example, at earth. If we take this mass at moon, अगर हम इस मास को कहाँ ले गए? मून. So what will be the mass of the body at moon? मून पर क्या मास होगा इस बॉडी का? Its mass will be how much? 100 kg at moon also. You take it to Jupiter, there also its mass will be 100. Mass never change. Mass कभी नहीं बदलता. Suppose your mass on the earth is 50 kg. So आपको मून पे लेके जाएंगे तो आपका मास कितना रहेगा? 50 kg ही रहेगा. मास नेवर चेंज. मास कभी नहीं चेंज होता है. सो दिस इज कॉल्ड मास. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी नो दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? सो मास इज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी. Measurement of quantity is called mass. Measurement of quantity is called mass. Now, if I will ask you that, you tell me what is, I will ask you that what is the unit of mass? What is the unit of mass in
SI system. SI means in previous video we have discussed the Lee International System of the Unit. Lee International System of the Unit. The full name of SI is Lee International System of the Unit. So in SI system its unit is kilogram. And what are units? Units are standard values. मतलब कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि फिक्स होती हैं, जिन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है. कौन एक्सेप्ट करता है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहां पर है? फ्रांस में है. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? मास यूनिट इज किलोग्राम. नाउ व्हाट इज किलोग्राम? 1 किलोग्राम किसे कहेंगे? व्हाट इज 1 किलोग्राम? 1 किलोग्राम किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से. कहां? फ्रांस में, पेरिस के नजदीक. फ्रांस में क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जनरल वेट्स एंड मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल वेट्स एंड मेजरमेंट. यस, इन दैट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए सिलेंड्रिकल बॉडी. वहां एक सिलेंड्रिकल बॉडी है. कितने हाइट की सिलेंड्रिकल बॉडी है? द हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3.9 सेंटीमीटर and its diameter is also 3.9 centimeter. Diameter is 3.9 centimeter and height of this cylindrical body is also 3.9 centimeter. The mass of this cylindrical body, mass of this cylindrical body, this cylindrical body mass is called 1 kg. इसी cylindrical body के मास को क्या बोलते हैं? 1 kg. किसका बना हुआ है? This is made of platinum, iridium alloy. किसका बना हुआ? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय. तो फ्रांस के जनरल कॉन्फ्रेंस एंड वेट मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे सिस्टम, सारी यूनिट्स को डिसाइड करती है. उसके लेबोरेटरी में, उसके लैब में क्या पड़ा हुआ है, क्या रखा हुआ है? सेफ जोन में क्या रखा हुआ है? एक सिलेंड्रिकल बॉडी रखी हुई है जो किसकी बनी हुई है? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की. हाइट 3.9 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है? 3.9 सेंटीमीटर. इस सिलेंड्रिकल बॉडी के मास को क्या बोलते हैं हम? 1 kg. और 1 kg किसके इक्वल होता है? 1 kg होता है 2.2 पाउंड. किसके इक्वल होता है? 2. इसका मास कितना है? 2.2 पाउंड. जो मीन्स सबसे पहले जो चलती थी एफपीएस चलती थी. एफपीएस मीन्स फुट पाउंड सिस्टम. ये ब्रिटिश सिस्टम था. ब्रिटिश इंजीनियरिंग में आज भी ये सिस्टम चलता है. मीन्स लेंथ इज इन फुट, मास इन पाउंड and time is in second. This was a British measurement system. Their foot pound system is there. This foot pound system in British measurement, there is foot pound system is working. In this foot pound, mass is in pound. Mass किस में नापा जाता है? Mass is in pound. किस में नापा जाता है? Pound में. और जो 1 kg है वो किसके इक्वल है? 2.2 पाउंड. So 1 kg क्या है? It is mass of a body. Which type of body? Cylindrical body. Cylindrical body of height 3.9 centimeter, diameter 3.9 centimeter, made up of platinum iridium. किसका बना हुआ है? Made up of platinum iridium. So 1 kg is the mass of a body, cylindrical body of height 3.9 and diameter 3.9 centimeter, made up of platinum iridium alloy. Platinum iridium alloy. Kept in France, General Conference and Weight Organization. Its mass is called 1 kg. And this is due to that reason we call units are standard values. Units क्या होती हैं? Standard. ये फिक्स है. तो पूरी दुनिया को 1 kg, 2.2 पाउंड को 1 kg मानना होगा. तो इसका जो मास होगा, अब किसी का मास अगर क्या है, सो बोल द मास ऑफ एनी बॉडी इज हाउ मच? 40 kg. मास ऑफ एनी बॉडी इज हाउ मच? 40 kg. दैट मींस हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो सिलेंडर हैं इसके अंदर कितने होंगे? 40 होंगे. हाउ मेनी सिलेंडर? 40. एक सिलेंडर का मास कितना है? 1 kg. तो किसी का मास अगर 40 kg है तो वी कैन से दैट इन दैट 40 such type of cylinders we can take. तो उसमें से हम इस तरह के 40 सिलेंडर निकाल. सपोज माय वेट इज 60 kg. तो मेरे अंदर से इस तरह के कितने सिलेंडर बन सकते हैं? इतनी मास के 60. सो दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट. इसे कहते हैं हम मेजरमेंट. सो दिस इज द यूनिट ऑफ दिस.
right? So mass never change and its unit is kilogram, and 1 kilogram is the mass of this body which is kept in जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रांस। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज को नापता है, जिस जो सिस्टम को रन अप करता है। पहले अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम चलती थी। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू। सो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। यस, सो दिस इज कॉल्ड 1 kg। दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। नाउ so how many type of masses are there? There are 2 type of masses. Number first is called inertial mass. It represents its inertia, property of inertia, inability to change its position is represented by inertial mass. And number second is called its what? Gravitational pull. Now what are the unit? Now for heavy masses units, for small masses units there are kilogram is the standard unit। किलोग्राम कौन सी यूनिट है? स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन हैवी मासेस को नापने के लिए कुछ और यूनिट्स का भी हम यूज करते हैं। उनको सबको केजी में तोड़ा जा सकता है, और स्मॉलेस्ट मासेस को भी नापने में हम कुछ अदर यूनिट्स का यूज करते हैं। क्या है वो यूनिट्स? जी, फॉर हैवी मास नंबर फर्स्ट टन। Everybody know 1 ton equal to how much? 1000 kg. The smallest unit of mass, the larger unit of mass is ton. क्या है? टन। एक टन में कितना होता है? 1 ton equal to 1000 kg. Number second larger unit is 1 quintal. 1 quintal equal to 100 kg. आप कुंटल में भी नाप सकते हैं मास को। एक कुंटल में कितना केजी होगा? 100 केजी। केजी इज द स्टैंडर्ड यूनिट। केजी स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो सबको केजी में कन्वर्ट करा जा सकता है। अब हम 1000 केजी कहने से अच्छा क्या कहेंगे? 1 कुंटल। इजी होगा, स्पेस कम होगा, इजीली हम हैवी मासेस को कुंटल में नाप सकते हैं। नंबर से थर्ड इज स्लग, SLUG, स्लग। स्लग क्या होता है? स्लग एक कीड़ा होता है। आपने देखा इस तरह से चिपचिपा जैसा होता है, ऐसे 2 सींग निकले होते हैं, उसके ऐसे चलता है, उसे स्लग बोलते हैं। तो दिस स्लग इज द मेजरमेंट ऑफ मास। दिस इज द यूनिट ऑफ योर मेजर। वो कीड़ा नहीं है, मेजरमेंट यूनिट का नाम है स्लग। स्लग एक कीड़ा होता है, जानवर में, उससे याद दिलाया आपको। तो स्लग इज द आल्सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। कितना होता है? एक स्लग में होता है 14.57 kg। कितना होता है? 14.57 kg। ये आपके माइंड में होने चाहिए। आप साइंस के बच्चे, आपको सब चीज पता होनी चाहिए। 1 slug। नाउ आफ्टर दैट देयर इज अनदर यूनिट दैट इज कॉल्ड CSL। क्या बोलते हैं? CLS। ये भी हैवी मासेस के लिए यूज किया जाता है। CLS मींस होता है चंद्रशेखर लिमिट। क्या बोलते हैं इसे? चंद्रशेखर लिमिट। इट इज द यूनिट ऑफ मास। किसकी यूनिट है? मास की। चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। कितना होता है? 1 CLS। 1 CSL इक्वल टू 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। मीन्स सूरज के, सन के मास का 1.4 टाइम्स। सर व्हाट इज द मास ऑफ सन? सी, order means nearest value. Yesterday we have discussed order of mass of sun is 10⁻30 kg। जो नियरेस्ट वैल्यू है मास की, एक्चुअली तो नहीं पता होती किसी को, तो नियरेस्ट वैल्यू जो ऑर्डर के टर्म में है वो कितने है? 10⁻30 kg है। तो सोचिए एक CLS कितना हैवी मास है? 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। दीज आर द लार्जर यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। देयर आर फ्यू स्मॉल यूनिट्स आल्सो। एवरीबॉडी नो, आपने पढ़ भी रखा है। मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम, ग्राम 10⁻³ kg। These are the smallest unit. Then there is AMU, very important, you know about in chemistry। इसे क्या बोलते हैं? Atomic mass unit। The mass of atom, molecules, small particles is measured in this unit only, the atomic mass unit। What is atomic mass unit? 1/12 mass of 1 atom of 6C12, कार्बन 12 कहते हैं। 1/12 टाइम ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड 1 AMU। कितना होता है AMU में? 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है 1.66
10⁻⁻27 kg, कितना छोटा है देखिए, -27 है. So this is smallest very. Now what is the smallest unit for the measurement mass? मास को नापने की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, smallest unit of mass. The smallest unit of mass is carat. क्या होती है? कैरेट, रिप्रेजेंटेड बाय C. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? C से. इसे बोलते हैं कैरेट. क्या बोलते हैं? कैरेट. 1 कैरेट इक्वल टू 200 milligram. This is the smallest unit for measurement of mass. So these all you have to keep in your mind because you are science student. अगर किसी ने पूछ दिया भाई 1 टन, बोला किसी ने पापा जी का बिजनेस शुरू किया, बोले हम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे. पापा ने कहा कोई बात नहीं, पढ़ाई में अच्छी नहीं थी तो बिजनेस खोल लेते हैं. तो बहुत लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अच्छा पैसा, बिजनेस खोल लेते हैं. भाई रेता बजरी का बिजनेस शुरू किया, रेता भी था तो इतना कुंटल लेता है, तो पता होना चाहिए कितना केजी आया. साइंस इतनी तो पढ़ी हो बच्चे ने, तब तो सिखा देते. सो दीज स्मॉल थिंग्स शुड बी इन योर माइंड. सो दीज आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ व्हाट? मासेस. मास को मेजरमेंट करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? केजी. लार्जर यूनिट्स इनका आप यूज कर सकते हैं, स्मॉलर यूनिट इनका आप यूज करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कॉम्पिटिशन में कई बार पूछे जाते हैं. 1 kg इक्वल टू 1 टन इक्वल टू हाउ मच, 1 क्विंटल इक्वल टू हाउ मच, 1 स्लैग इक्वल टू हाउ मच, व्हाट इज CSL चंद्रशेखर यूनिट है, 1 AMU इक्वल टू हाउ मच, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज हाउ मच kg. So these are for competitive exam. बहुत बार पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. आफ्टर 12th when you will go in competitive exam, 85% syllabus, 75 to 85 it will come from 11th only, na? So this is very important for 11th class. Now how many type of masses? 2 type of masses, that is inertial mass and number second is gravitational mass. Inertial mass and gravitational mass. Now we will discuss measurement of masses. Measurement of masses means how you will measure these masses, by which device you will measure these masses. जैसे टेम्परेचर थर्मोमीटर से नापा जाता है ना? टेम्परेचर. टाइम किस में नापा जाता है? घड़ी द्वारा नापा जाता है. कुछ तो डिवाइस होती है नापने की. सिमिलरली हाउ यू विल मेजर द मासेस? देयर आर 2 डिवाइसेस. इनर्शियल बैलेंस, number first. Number second is called physical balance or common balance. There are two devices which is used to measure the mass. मास को नापने के लिए 2 डिवाइसेस का नॉर्मली यूज किया जाता है. एक किया जाता है इनिशियल बैलेंस का और दूसरा किया जाता है फिजिकल बैलेंस, और उसे क्या बोलते हैं? कॉमन बैलेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉमन बैलेंस. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहली डिवाइस, इनर्शियल बैलेंस. Inertial balance. Now what is inertial balance? It is a device which used to measure inertial mass. किसको नापती है ये? inertial mass को. inertial mass and gravitational mass are both are same. तो inertial mass को नापने वाली जो डिवाइस है उसका नाम क्या है? इनर्शियल बैलेंस है. क्या है? इनर्शियल बैलेंस. क्या नाम है उसका? इनर्शियल बैलेंस. अब कैसा होता है इनर्शियल बैलेंस? देखिए ध्यान से. क्या होता है? एक टेबल होती है इनर्शियल बैलेंस जिसमें नापा जाता है क्या चीज है? एक टेबल होती है. क्लियर? क्या होती है? एक टेबल. एंड एट द कॉर्नर ऑफ दैट टेबल देयर इज ए वुडन ब्लॉक. लकड़ी का एक ब्लॉक होता है, वुड ब्लॉक, हैवी ब्लॉक्स. ये फिक्स होता है इस पर. क्या होता है? फिक्स. इट इज फिक्स ऑन दिस टेबल. इस तरह से फिक्स किया रहता है ऑन द टेबल. दिस ब्लॉक इज फिक्स ऑन द टेबल मीन्स इस टेबल पर ये ब्लॉक फिक्स होता है. नाउ दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड थ्रू 2 मेटेलिक स्ट्रिप्स ए एंड बी. कैसे होते हैं? मेटेलिक. कैसे होते हैं? मेटेलिक स्ट्रिप्स होते हैं. कितने? ए और बी. And these 2 metallic strips are connected through a pen.
पेन मीन्स जैसे तराजू का पलड़ा देखा आपने, पलड़ा तराजू जिसमें हम सब्जी नापते हैं, वो जो कटोरा जैसे जिसमें हम वेट रखते हैं और सब्जी रखते हैं उसे पेन बोलते हैं, ठीक है, दैट इज ए पेन। एंड ऑन दैट पेन यू विल सी फ्यू होल्स, दीज होल्स आर ओनली टू होल्ड द mass. Now whatever mass you have to measure, suppose you have to measure the mass of this body, this is the body, mass of this body you want to measure by this inertial balance. So what you will do, you will take this mass here, this body you will hold between these two, then this pen on this, suppose this cap is pen, on this pen you will cap that weight and you will displace it, डिस्प्लेस कर देंगे। नाउ ऑन द टेबल क्या करता है ये, ऑन द टेबल दिस इज द पेन, यू हैव केप्ट द मास ऑन दिस टेबल एंड डिस्प्लेस। नाउ व्हेन यू विल डिस्प्लेस दिस स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये क्या करना शुरू करता है, वाइब्रेशन, क्या करना शुरू कर देता है, दिस पेन स्टार्ट वाइब्रेशन, क्या स्टार्ट करता है, वाइब्रेशन। सो एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है फॉर वन वाइब्रेशन, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ये एक हो गया ना पूरा, नीचे गया फिर ऊपर आ गया, तो वन वाइब्रेशन, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन का टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। मीन वन वाइब्रेशन यहां से शुरू हुआ, यहां गया, वापस यहां आ गया, तो क्या हो गया, एक वाइब्रेशन हो गया ना। एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो क्या किया जाता है, हम इसका क्या मेजर कर लेंगे, वी विल मेजर द टाइम पीरियड ऑफ इट्स वाइब्रेशन। द टाइम period of vibration is t equal to कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ये फॉर्मूला होता है। हम इसका टाइम पीरियड यहां से मेजर कर लेंगे घड़ी से कि कितना समय में एक वाइब्रेशन पूरा कंप्लीट कर रहा है, वी विल मेजर दैट। दिस टाइम इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन अंडर रूट m, दिस इज कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट हियर, 2 पाई इज आल्सो कांस्टेंट, सो t इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन अंडर रूट m। दिस इज मास ऑफ दिस बॉडी, ये क्या है, m क्या है, मास ऑफ बॉडी। तो यहां से हम क्या करते हैं, तो T1 अपॉन T2 अगर मैं करूं तो क्या आएगा, अंडर रूट M1 अपॉन M2। बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द मास, बिकॉज टाइम वी विल मेजर बाय क्लॉक, टाइम तो हम इसका मेजर कर लेंगे, मासेस का रेशियो निकाल लेंगे, हमको आंसर आ जाएगा। एक भी मास दिया होगा दूसरा निकाल लेंगे, यहां से टाइम निकल गया तो मास भी निकल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शियल बैलेंस, द मास मेजर बाय दिस बैलेंस इज कॉल्ड इनर्शियल बैलेंस मास। फॉर एग्जांपल सपोज उसने कहा the time period of vibration of two bodies are 1 second and 2 second in inertial balance. In inertial balance, find ratio of their masses, find ratio of their masses बोला। so what we'll do, so क्या आ जाएगा, T1 upon T2 under root M1 upon M2, this is the formula। स्क्वायर कर लेंगे, T1 कितना है, 1 upon 2 under root M1 upon M2, so 1 upon 4 equal to M1 upon M2, M1 ratio M2 will be 1 ratio 4, those their masses will be in ratio 1 ratio 4, this is the ratio of their masses। Is it clear? So this is called inertial balance, which will measure the inertial mass. Inertial mass which represent inertial property. हॉरिजॉन्टल में मूव करने की प्रॉपर्टी, कि मूव करेगा या नहीं करेगा, उस मास को जो रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल मास एंड इट इज मेजर्ड बाय इनर्शियल बैलेंस। लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल कम, दैट मींस व्हेनेवर यू विल गेट द टाइम एंड योर टास्क टू फाइंड आउट मास, तो डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन किसका है, इनर्शियल बैलेंस का क्वेश्चन है। मास और टाइम में रिलेशन होता है। मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे जब पढ़ते नहीं है इस चीज को, ये छोटी छोटी चीज है, इसको पढ़ते नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है मास और टाइम से रिलेटिव क्वेश्चन, तो उनको जब इनर्शियल बैलेंस ही नहीं पता है, सो हाउ दे विल सॉल्व इट। सो दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वी कैन इजिली डू इट। यस, दिस वाज द फर्स्ट डिवाइस। नाउ नंबर सेकेंड, the second is called, क्या कहते हैं सेकंड को, कॉमन बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। ये क्या है पता, ये आपका वही है जिससे आप सब्जी वब्जी नापते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है। सब्जी नापने वाला तराजू देखा आपने, तो बिल्कुल वैसे ही होता है। दो पेन होते हैं, कैसा होता है, इसमें क्या होता है देखिए, ये होता है, यहाँ पर एक नीडल होती है जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, स्केल को। स्केल का 0 पॉइंट होता है,
इस तरफ एक पेन होती है और इस तरफ दूसरा पेन होता है, ये दो पेन होते हैं। इसमें कितने तराजू होते हैं? तराजू बैलेंसर कितने होते हैं? जो जिसमें सब्जी नापते हैं ऐसे होता है, इधर हुक्का होता है, कितने होते हैं? दो पेन होते हैं। इन सपोज यू वांट टू मेजर मास ऑफ दिस बॉडी, आप मान लीजिए इस बॉडी का मास मेजर करना चाहते हैं। यू विल कीप दैट मास इन वन पेन, आप एक पेन पे उस मास को रख देंगे। इन सेकेंड पेन यू विल पुट द मास स्टैंडर्ड वेट, क्या रखेंगे यहाँ पर? स्टैंडर्ड वेट। एक डब्बा होगा जिसमें वेट रखे होंगे, स्टैंडर्ड वेट होते हैं छोटे से बड़ा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप? स्टैंडर्ड वेट से रखेंगे। जैसे आलू नापना होता है, आपको पता है आलू नापते हैं, एक तरफ आलू रखते हैं, एक तरफ मास रखते हैं, जो मास जिसमें लिखा होता है 1 kg 2 kg का ब्लॉक है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड वेट हो गया, वो तो मेजरेबल है, मेजर्ड वेट है। इस तरफ आलू का वेट पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इनको बैलेंस करते हैं। नीडल कहाँ आ जानी चाहिए? एट 0, नीडल 0 पर आ गई तो दीज टू आर बैलेंस। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? जो फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस, और जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन बैलेंस, इसलिए कॉमन बोलते हैं इसको। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या मतलब हुआ? जैसे दो बैलेंस है, अगर किसी भी एक बैलेंस पे वेट ज्यादा हो गया, मान लो इस पे ज्यादा हो गया तो इस तरफ को जाएगा, इस पे ज्यादा हो गया तो इस तरफ को जाएगा। दैट मीन्स जहां को ज्यादा फोर्स होगा वहीं को मोमेंटम होगा, वहीं को मूव करने लगेगा। दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। सो हम क्या करते हैं? हम दोनों को बैलेंस करते हैं। नीडल कहाँ आ जानी चाहिए? 0 पर। जब नीडल 0 पर आ गया, हम लिखेंगे मास ऑफ लेफ्ट पेन इक्वल टू मास ऑफ राइट पेन। जो भी मास यहाँ होगा, यहाँ पर कौन सा मास होगा? मेजर्ड मास। मतलब 2 kg का बाट रखा है, इसका मतलब यहाँ आलू कितने kg हो गया? 2 kg। 5 kg का रखा है, बैलेंस हो गया, तो इसमें आलू कितना kg हो गया? 5 kg। सो वी कैन मेजर द मास।